Good evening. Today is 22nd December 2016. Now we discuss current affairs today. Okay, it is presented by me. My name is Surya Kumar Dakua. So देखिए आपका आज का current affairs क्या है. Okay, start discussion. Okay, China successfully launched TANSAT, a global carbon oxide. Okay, चाइना ने लॉन्च किया है TANSAT जो एक ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटरिंग सैटेलाइट है. टू अंडरस्टैंड क्या हमने अंडरस्टैंड करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में. इफेक्ट्स क्या करेंगे क्लाइमेट के चेंज का क्या इफेक्ट है. देखिए अब याद रखिए TANSAT जो चाइना ने लॉन्च किया है एक ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग करने के लिए. ओके, जो लॉन्च ऑन द बोर्ड ऑन द लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट. ओके, तो 10 मीन्स की 10 मीन्स 10, तो 10 सैट. ओके, तो 10 सैट मैंने सैटरडे. अब याद रखिए तो सैटरडे में 10 सैटरडे 10. ओके, 10 सैट. ओके, अब रखिए तो अब देखिए मार्च 2D रॉकेट फ्रॉम द जुकान सैटेलाइट. ओके, देखिए फ्रॉम जुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना गोबी डिजर्ट के पास. ओके, it was the 43rd mission of the long March series rocket. Okay, 243. Okay, mission of the long March series rocket. Okay. With this, China became the third country after Japan and United States to have its own satellite to monitor greenhouse gases. Okay, so China का third rank है यहाँ पर. So Japan and United States के बाद. Okay, about TANSAT satellites, TANSAT will thoroughly examine global CO2 level को देखेंगे. Okay, every 16 days में accurate to at least 4 ppm जो parts per million. Okay, the weight क्या its weight is 620 kg. Sorry, will be located in the sun synchronous का जो orbit है वहाँ पर हम देखेंगे about 700 kilometer above the earth. Okay, 700 किलोमीटर जो है वो अर्थ से. Okay, it was a 3-year mission life. Okay, so it will thoroughly monitor the concentration, distribution and flow of CO2 levels को देखेंगे वो. Okay, 16 days every 16 days में. Okay, accurate to at least 4 ppm parts per million in the atmosphere. The satellites will help जो अंडरस्टैंड करेंगे हम क्या सैटेलाइट जो देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है and provide China's policy makers जो है will with independent mission data first hand and share it was researches worldwide research होगा. It will give China's louder voice climate change global and carbon reduction negotiation में वो बात कर सकते हैं कि हमने भी देख रहा हूँ कि कैसे हमने जो चाइना का कितना इमिशन कर रहा है. कार्बन रिडक्शन जो नेगोशिएशन एंड बिगर से ऑन कार्बन ट्रेडिंग. ओके, नेक्स्ट क्या है प्राइम मिनिस्टर सिनो एबेज कैबिनेट अप्रूव्ड 5.13 ट्रिलियन येन. ओके, सिनो एबेज कैबिनेट अप्रूव किया 5.13 ट्रिलियन जो येन जो है इन डिफेंस स्पेंडिंग फॉर the fiscal year starting in April 2017. Okay, so देखिए जापान बिगेस्ट एनुअल डिफेंस बजट का किया है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है. इट इज अप बाई 1.4% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द इनिशियल बजट से. ओके, जो फिजिकल द करंट फिजिकल ईयर में. सो नाउ इट विल बी सेंट टू पार्लियामेंट to debate approval. Key facts क्या है under the new budget Japan aims to beef up a ballistic missile defense account allocating funds for a new interceptor missile under this development with the United States. Okay, it was arm makers funds to dispatch extra personnel to the Philippines and Vietnam to increase gathering and sharing of information. Okay, देखिए यहाँ पर क्या उन्होंने की फैक्ट्स किया है अंडर द बजट. जापान का मेन एम्स क्या है बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस के अंदर उन्होंने बनाएंगे. ओके, जो अकाउंट एलोकेटिंग फंड्स जो है फॉर फंड्स टू डिस्पैच करेंगे एक्स्ट्रा पर्सनल
of the Philippines, Vietnam to increase gathering and sharing information में gathering करेंगे and sharing करेंगे. The funds have been increased, monitoring operations and to maintain करेंगे क्या mastery of air and sea counter को attacks against Iceland area में. Okay, which are disputed territory. Okay. Separately, Japanese Coast Guard will increase security around the island by allocating a record 210 billion yen. Okay. Allocating 210 billion yen. Okay, which includes two new petrol ships and the hiring of 200 more personnel. Okay. Okay. The comment it marks the fifth straight annual increase in annual defense budget in the face of North Korea's nuclear and missile treaty threats of a territorial draw with China. Okay. Japan is the constant alert against neighboring North Korea. Okay, it dropped nuclear state which has conducted 2 underground nuclear tests and more than 220 missile launches in the year 2016 में. Okay, देखिए नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर स्टेट. ओके, कंडक्टेड जो टू अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है, 20 मिसाइल लॉन्च किया है. The defense budget rise also reflects the Haki's Prime Minister Shinzo Abe again attempt to build Japanese military. Okay, which since World War II has been constitutionally limited to self-defense. PM Abe is also pushing revisions to the Pacific Constitution of Japan, strongly backed new security laws for making it possible for Japanese troops fight abroad the first time since the end of the war. Okay. उसके बाद देखिए the National Mathematics Day is observed every year 22nd of December, celebrated birth anniversary of grand Indian autodidact mathematician Srinivasa Ramanujam. Okay, this year Srinivasa Ramanujam. Okay, this year 129th anniversary Srinivasa Ramanujam Award Srinivasa Ramanujam जो क्या था, was born on December 22nd December 1887 में born हुआ था in Erode district in Tamil Nadu में. He died at young age 32 on 26th April 1920 में. He was considered a doyen of number theory, infinite series mathematical analysis and making formulas and equations without any formal training in pure mathematics. He is the same league as great mathematicians such as Euler, Gauss. Okay, Srinivasa Ramanujam is her. Okay, so Srinivasa Ramanujam is इंडिया का है. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो उन्होंने बहुत साल पहले वो बॉर्न हुआ था 129 में, जो 1887 में बॉर्न हुआ था 22 दिसंबर में, आज ही के दिन. ओके, उन्होंने डाइड हो गया था उसका 26 अप्रैल 1920 में. ओके, बहुत ही अच्छी पर्सन था. तो हम एक ग्रेट मैथमेटिशियन को हमने पाया था इंडिया में. तो यूलियर एंड गेस भी बहुत अच्छी मैथमेटिशियन है, लेकिन वो इंडिया के नहीं है. He was deeply religious person, had credited his mathematics capacities to divinity. He had once said, an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. Okay. Key contributions as a mathematical genius. He had compiled more than 3,900 mathematical results and equations. His Ramanujan prime and Ramanujan theta again discovered have inspired further research on the mathematical subject. Along with British mathematician Godfrey Harold Hardy,
Ramanujan had discovered the smallest number of representatives of the sun at of two cubes. Okay, 1729, which is known as Hartley Ramanujan. Okay, Hartley Ramanujan number. Okay, autobiography of and movie, the future film, The Man Who Knew Infinity, was based on his life. It was based on his biography, The Man Who Knew Infinity, a life of the genius Ramanujan, written in 1991 by Robert Kanigal. Background क्या है? The National Mathematics Day was instituted in 2011 by the Union Government to celebrate Ramanujan's 125th anniversary. This is the year 2012. It was also declared National Mathematics year. Okay. Next देखिए the Sahitya Academy has announced the names of 24 poets and authors who will be conferred the prestigious 2016 Sahitya Academy Award. The books has recognized premier works into the fourth Indian languages that includes 8 books of poetry, 7 books of short stories, and 5 books of novels, 2 books of criticisms, and 1 book each of the essays play. Winners are play. Okay, Swarajbir. Okay, is Nrsimha Prasad Bhaduri. Okay, Bengali में. Okay, so ये नाम दिया हुआ है, तो आप देखिए बहुत अच्छी बात नहीं है. देखिए तो नेक्स्ट क्या है? हांगकांग, ए चाइना एडमिनिस्टर्ड special territory, has decided to withdraw visa free. Okay, the China administered special territory has decided to withdraw visa free facility for Indians from January 2023. देखिए हांगकांग में हम जा सकते हैं. चाइना एडमिनिस्टर्ड जहाँ पर स्पेशल टेरिटरी है, डिसाइडेड क्या है ना, विद्रो कर लिए वीज़ा फ्री फैसिलिटी हमें मिलेगा इंडियंस को फ्रॉम जनवरी 23 में. ओके, तो हम भी जा सकते हैं, तो हम भी जाएंगे. तो देखिए ओके, द डिसीजन वाज टेकन ऑन द ग्राउंड टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेशन एज नंबर ऑफ इंडियन asylum seekers was on the rise. Okay, 1.5 million Indians visit Hong Kong for business. Okay, over 500,000. Okay, trade holidays में जाते हैं. Under the new rules, Indian travelers will have to complete pre-available registration. Such pre-registration would not be necessary for those transitions through the Hong Kong airport without leaving the airport transit area. Background: earlier, Hong Kong used to be a part of a block of countries that gave Indians unconstitutional visa-free entry. Okay, Indians were permitted to enter Hong Kong with a valid passport. Okay, valid passport for a period of 14 days. Okay, without a visa. However, in recent time, it was found that the Indian nationals were overstaying in Hong Kong by violating visa norms. Okay. Comment: Hong Kong's unilateral decisions came a year after its government had sent a delegation headed by the Assistant Director of Immigration from the Immigration Department of Hong Kong Police and 2015 to India. It had informed concerns about illegal employment and human trafficking involving Indians in Hong Kong to Indian External Affairs Minister. They haven't had expressed concern that Indians taking up jobs even though Hong Kong does not allow visitors to work. Okay. The Union has approved a draft ordinance to empower states and allow the industries to pay workers. Okay, wage digitally. Okay. A draft ordinance empowers states empower करेंगे allow industries to pay workers wage digitally through the direct bank transfer to account of by check. Okay, in a bid to encourage cashless transaction. Okay. Okay. The draft ordinance purposes change of change to the Section 6 Payment of Wage Act. Okay.
1996 to 36 to encourage cashless transactions. Okay, देखिए यूनियन कैबिनेट जो है पूरी ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस क्या है एम्पावर करेंगे स्टेट्स को इंडस्ट्री में वर्क पे देंगे। ओके, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेंगे। ओके, चेक बीड इनकरेज कैशलेस ट्रांजेक्शन को इनकरेज करेंगे टू ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस। पर्पसेस चेंज इन सेक्शन 6 पेमेंट वाइज एक्ट 1936 में इनकरेज कैशलेस ट्रांजेक्शन को इनकरेज किया है। इट विल नीड टू प्रेसिडेंट असेंट टू बिकम लॉ एज पर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की फैक्ट क्या है? It will allow industries to pay wage to workers earning up to reaches 18,000 per month. Okay, without taking their explicit under present act. However, wage payment even through the banking system will only be optical until the state government or union government came up with a notification for specific industry since labor in the concurrent list. The present law the states that all payment should be in cash. Okay, under the mandatory provision asking employment to obtain written permission the worker pay either by check or by crediting wages to his or her bank account. Current the payment wage through check or DBT of employed person has one motives, that is it will reduce complaints regarding non-payment. Okay, or less payment of minimum wages or safer purpose of digital and cashless cash economy. The move is significant in view of the Union government in promoting cashless transactions after its decision to scrap the old high value, which is 500 and 1000 currency note. Earlier payment of wages amendment bill 2016 introduced in the Lok Sabha. Okay, में पास हुआ था इम्पोज पार्लियामेंट में। देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट submitted by Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, there is alarming rise in forest fires across India. It says that the number of forest जो है fires जो touch to 24,000 something जो 2016 में 2015 में 15,937। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ सबमिट पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अलार्मिंग किया है जो प्राइज हो रहा है फॉरेस्ट फायर्स। ओके, इंडिया में। ओके, देखिए ये रिपोर्ट फॉर फोकसेस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द कंटेनिंग द ऑफ फायर्स इन द हिमालयन फॉरेस्ट लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, फाइंडिंग ऑफ कमिटी देयर इंक्रीज द फॉरेस्ट फायर्स even seen even through the 2015 was considered a drought year. Okay, frequency forest fires 16%. Okay, so the three central states Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha contribute a third forest fires. Okay, Madhya Pradesh has been nearly tenfold increases in forest fire, and from just 294 in 2015 and now it is 2,600. Okay, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से सम इंक्रीजेस हुआ है वहाँ पर भी। सो बैकग्राउंड क्या है? द कमिटी वाज जो so avoiding हमने large scale incentive programs in so the procurement sweeping machine to clear roadsides chair pine needles. Again, background देखिए, the committee was formed after a series of devastating forest fires earlier in 2016, including the prolonged one that had charred 4,000 hectares of forest land across 13 districts, Uttarakhand, May 2016. The committee was headed in by Rajya Sabha MP Renuka Chaudhary. Okay, देखिए the Krishna Motor Miki and Maxam Radji will have been jointly won the 2016 Sastra Ramanujan Award for mathematics in their revolutionary collaborative work on short intervals in number theory. Again,
The mathematical work dwells on properties in numbers, short intervals. The two mathematicians work in the field medalist Terence Teo when making a breakthrough of on the Chawla conjecture. They were presented with his prestigious award and in inauguration of International Conference of Numbers Theory, Sarsa University, and Kumbakonam Kesa Maki from Finland's University of Turku is first woman to receive this Nobel Prize since it was instituted in 55. Okay. Maxim Radjiwali will is assistant professor and at McGill University. Canada awards Shastra as Ramanujam Prize. It is on annual award bestowed on young mathematician on his outstanding contributions to areas of mathematics influenced by the Srinivasa Ramanujam. It was established in 2005 by Shanmugha Arts, Science Technology Research Academy University. It is named after the great Indian mathematics autodidact Srinivasa Ramanujam. Criteria the age limit क्या है प्राइज का 32 because Ramanujam had achieved so much life 32 years में वो लिया बेली पे वो बहुत सी पुरस्कार जो प्राइज है ले लिया वो अचीव किया था. Okay, Kumbakonam which is Ramanujam hometown. Okay, तो वहाँ पर देते हैं हम. तो आप देखिए नेक्स्ट जो सम जो न्यूज है तो मैंने वो आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो अब देखते सुनिए मेरा बात. ओके, देखिए जो आज का जो न्यूज है, नेक्स्ट क्या न्यूज है देखिए. कैबिनेट ने अप्रूव किया है टू पे सैलरीज भाई दैट इज चेक्स में. ओके, सेंटर अप्रूव्ड द promulgation on the ordinance to enable industries to pay wage by check or by direct credit into banks accounts of workers earning up to 18,000 a month without taking their explicit consent as required under the present 1936 law. The ordinance of effect changes to section 6 of the payment of wages act 1936. देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है ना, सेंट्रल क्या है ना, प्रोमुलगेशन क्या है, द ऑर्डिनेंस टू एनुअल इंडस्ट्रीज को ऑर्डिनेंस दिया टू पे क्या करेंगे वेज को चेक्स में देंगे. ओके, और बाई डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड में वो भर देंगे. ओके, बैंक अकाउंट में. तो वर्कर्स ने कितना रुपया ले सकते हैं 18,000 पर मंथ. ओके, अर्निंग कर सकता है विदाउट टेकिंग देयर एक्सप्लिसिट कंसेंट एज रिक्वायर्ड एज कांस्टेंट. एंड देखिए आप देखिए द ऑर्डिनेंस जो है अफेयर्स चेंजेस टू सेक्शन 6 में हुआ है एंड पेमेंट्स वेजेस एक्ट 1936 में अंदर हुआ है. The present law states that all payment of wages जो है और should be in cash में वो कैश में देंगे वो. Okay, so with the promising act asking employment to obtain क्या written permission. Okay, जो asking क्या करना employees को जो obtain करेंगे written permission में देंगे. Okay, तो to the workers to pay either in by check or by crediting. Okay, wages either bank account में. Okay, उसको देंगे. नेक्स्ट देखिए उसके बाद देखिए वेज जो पेमेंट है about the banking system would be only optional until state government or the center come up with the notification for specific industry. The center of state government may specify क्या करेंगे ना industry through official notification where official notification में करेंगे. तो official notification में अंदर आ गया है. तो उसके बाद क्या ना the payment of wages जो है bill the 2016 was introduced by the Lok Sabha on December 2015, but it could not be cleared owing to the impasse in Parliament. देखिए पार्लियामेंट जो पेमेंट वेजेस है बिल है 19
1936 में, तो वो क्या करेंगे ना, हम इंट्रोड्यूस करा कि लोकसभा के अंदर, एंड जो दिसंबर 15 में हमने इसको वो काम नहीं किया, ओके, एंड ऊपर बिल को पास नहीं कर दिया, ओके। तो द मूव एज्यूम सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स, जो गवर्नमेंट जो डिमोनेटाइजेशन में बारे में जो काम कर रहा है और ट्रांजेक्शन के काम कर रहे हैं, तो उसके आप क्या करें, टू ओल्ड 5000 एंड 1000 करेंसी नोट को भी उन्होंने चेंज करने की बात किया है। तो उसको भी उन्होंने जो कैश की तरफ ना देंगे, नहीं देंगे, उसके बाद उनको चेक्स में देंगे, ओके। तो उसके बाद देखिए, द पार्डन द जेंडर वेज गैप इज शोइंग, ओके। इंडिया हैज अमंग द वर्स्ट लेवल्स ऑफ जेंडर वेज डिस्पैरिटी, जहाँ पर डिस्पैरिटी है इंडिया में, वेज डिस्पैरिटी है, जेंडर गैप है। तो मेन अर्निंग मोर देन वुमेन इज सिमिलर जॉब्स, ओके, विद द गैप एक्सपेक्टिंग 30%, ओके। जहाँ पर गैप कितना है, 30% है। द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2016-17 रिलीज किया है, बट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज किया है। क्या नाम, इन कंट्रास्ट सिंगापुर जो है, सिंगापुर हैड अमंग द लोएस्ट, सिंगापुर में जो लोएस्ट है 3% है वेज का जो गैप, किंतु बट इंडिया में 30% गैप है। तो देखिए कितना गैप है। अमंग मेजर इकोनॉमिक्स जो है, ओनली साउथ कोरिया फेस किया कर रहे हैं ना, वर्स देन इंडिया, ओके। साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा है, 37% गैप है। तो इन इंडिया वुमेन फॉर्म 60% ऑफ द लोएस्ट पेड, ओके। हम उसको 60% लोएस्ट पेड करते हैं वेज लेबर में, बट ओनली 15% ऑफ द हाईएस्ट वेज अर्नर्स, ओके। सो 15% जस्ट हाईएस्ट लेते हैं, ओके। सो आप देखिए कितना गैप है। नॉट ओनली आर वुमेन पोरली प्रेजेंटेड इन द टॉप बुक ब्रेक of wage earners, but the gender gap of the at the bottom is also very wide in India, जो बहुत लंबी तक चल रहा है। तो the report is also found that the share of women among wage earners was among the lowest in South Asia। जो साउथ एशिया में इसका वेज हम कम बहुत लोएस्ट है वो, ओके। साउथ एशिया के अंदर, साउथ एशिया में इंडिया पढ़ते हैं, तो बांग्लादेश भी पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा कितना गैप है। तो कंपेयर टू एक ग्लोबल एवरेज ऑफ साउथ ऑफ 40%, ओके, कंपेयर टू ए ग्लोबल एवरेज जो है 40%, बट एशिया पैसिफिक में एवरेज 38% में है। देखिए कितना ज़्यादा है इन साउथ एशिया, जहाँ पर डोमिनेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ओके, जहाँ पर इंडिया इज द डोमिनेंट इकोनॉमी, ओनली 20% ऑफ द वेज अर्नर्स वेर वुमेन, जहाँ पर 20% जस्ट वुमेन वेज लेते हैं, ओके, लेकिन 80% जो मेल लेते हैं, ओके। तो दे आर delving into the reasons for the wage gap. The report noted that typically women's educational choices women education जो women का जो educational choices produced occupational segregation, okay। देखिए यहाँ पर occupational segregation हम देख रहे हैं, okay, जो for instance since the majority of those who studied nursing were women, okay, this profession is over represented among women, okay। So at the same time the care work is undervalued, okay, because it may be seen as a new natural female attribute rather than a skill to be acquired। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं ना, एट द सेम टाइम जो केयर वर्क अंडरवैल्यूड बिकॉज यहाँ पर हमने उसको केयर नहीं कर रहा है क्योंकि वो फीमेल है एंड वहाँ पर उसका स्किल कम है, स्किल अच्छी नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको केयर नहीं कर रहे हैं, ओके। Thus a higher representation of women in section where their work is undervalued, okay। देखिए ये अंडर रिजल्ट इन ए पे गैप। सो हमने इसीलिए उसको पे करते हैं बहुत कम और बहुत लोएस्ट वेज देते हैं। तो यहाँ पर हमने वेज गैप देख रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज सच एज कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड मिनिमम वेजेस टू लोअर्ड द पे गैप, ओके। देखिए जेंडर वाइज जो डिस्पैरिटी है इंडिया का जो बहुत ही बढ़ रहा है तो वर्ल्ड में, तो लगभग 32%, ओके। जहाँ पर सबसे ज़्यादा है जो है बर्लिन एंड अजरबैजान, जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ओके। लेकिन देखिए सबसे कम जो है कम है हम देख रहे हैं कि सिंगापुर में, ग्रीस में, इटाली में, आयरलैंड में, कनाडा में, ओके।
तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है ना, सेंटर में एग्जामाइन मेडिसिनल properties of cow urine. Okay, the science and technology ministry may now have to critically evaluate the role of cow का रोल क्या है urine and dung in curing disease के अंदर. ओके देखिए, काउ जो है बहुत ही और डिजीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी डिजीज फैलाते हैं, डंग एंड कारिंग डिजीज को वो बढ़ावा देते हैं. ओके, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने स्पॉन्सर्ड द वर्कशिप टाइटल साइंटिफिक पैकेज वैलिडेशन ऑन रिसर्च ऑन पंचगव्य. ओके, पंचगव्य. ओके, साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पंचगव्य, वहाँ पर रिसर्च करने की बात कर रहे हैं वो गाँव के ऊपर. ओके, व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द आईआईटी दिल्ली ने काम कर रहा है. सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सीआरडीटी में भी सीआरडीटी भी वो काम कर रहा है. देखिए, पंचगव्य और द मिक्सचर of five products from the cow. Okay, in a concoction of dung, urine and milk along with the curd and butter. Okay, with panchagava is a part of Ayurvedic. देखिए, आयुर्वेदिक pharmacopoeia. Okay, आयुर्वेदिक पंचकोपिया pharmacopoeia. Okay, in proponents claim it can cure a range of elements. Okay, including cancer, जहाँ पर कैंसर भी हो सकता है. ओके, हमको इससे क्या नहीं लेना चाहिए. तो ये इसीलिए आईआईटी दिल्ली ने और रूरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ओके, उन्होंने भी काम कर रहे हैं. ओके, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर वर्धन सो वर्धन क्या कर रहे हैं ना, इज द लेटेस्ट मिनिस्टर टू अटेस्ट टू द बोविन्स सुपर एबिलिटीज. ओके, उन्होंने इसको अटेंड कर रहा है. ओके, बोविन के सुपर एबिलिटीज है उसके बारे में वो देख रहा है. जो हिज कॉलेजेस पे श्रीपाद येसो ने नायक टोल्ड जो उसका कलीग है, उन्होंने क्या बताया लोकसभा इन नवंबर 2016 में दैट द आयुष मिनिस्टर हैड अंडरटेकन सेवरल रिसर्च के बारे में दिखा. आयुष मिनिस्टर जो है एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ को उन्होंने प्रमोट कर रहा है टू प्रमोट द यूज ऑफ द काउ यूरिन. ओके, यूज करेंगे काउ का जो यूरिन है उसको यूज करना चाहते थे. एंड एंटी कैंसर जो है एंड एंटी इन्फेक्टिव जो होते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए. ओके, एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उससे बनाया जाए तो बहुत अच्छी होगा. ओके, ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन जो है इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है दैट हैज सो फार फंडेड क्या कर रहे हैं, फंड दे रहा है 16 प्रोजेक्ट्स को टू इन्वेस्टिगेट वेदर योगा एंड मेडिटेशन कैन एलिवेट रिकवरी फ्रॉम स्ट्रोक. जो योगा है उस स्ट्रोक से भी आपको रिकवर कर सकते हैं, उस स्ट्रोक नहीं कर देते हैं, आपको नहीं कराते हैं. तो देखिए, पार्किंसंस डिजीज एंड कैजियोफेनिया जो इसको भी स्टॉप कर देते हैं योगा एंड मेडिटेशन. नेक्स्ट देखिए, इंडिया हांगकांग का क्या बिलेटरल जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम बताएंगे. ओके, ओवरस्टेइंग इंडिया, देखिए हांगकांग रिवॉक्स वीसा फ्री एंट्री इन टू इंडियंस. देखिए, ओवरस्टेइंग जो इंडियन नेशनल वायलेशन वीसा नॉर्म्स प्रोमोटिंग हांगकांग ए चाइना एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी टू अल्टर इट्स वीसा एग्रीमेंट विद इंडिया. देखिए, चाइना टेरिटरी लाइक हांगकांग हम जानते हैं तो वो भी वीसा फ्री हो गया. तो अब हम जा सकते हैं हांगकांग में, तो वो वीसा नहीं लगेगा. ओके, तो 14 डेज का जो ट्रिप है उसका वहाँ पर हम जा सकते हैं. ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल चाइना नेपाल. देखिए, नेपाल हैड टू टोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज विद चाइना. देखिए, नेपाल क्या बताया ना, नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे चाइना के साथ. देखिए, बिगिनिंग ए न्यू लेवल ऑफ बिलेटरल मिलिट्री एग्रीमेंट नेपाल विल क्या करेंगे, नेपाल विल होल्ड इट्स फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे वो चाइना के साथ. देखिए, इसका नेम क्या है, प्रतिकर 1. ओके, 1 फरवरी 10 में होगा. देखिए, 2017 में होगा. ओके, the focus of the military exercise will be on training Nepal's forces in dealing with hostage scenarios involving international terror group को बड़ा स्टॉप करने के लिए.
नेपाल कंडक्ट किया है, नेपाल कंडक्ट एक्सरसाइज विद इंडिया अर्लियर, नेपाल पहले भी इंडिया के साथ एक्सरसाइज किया है. एनालिसिस से दैट दो द मिलिट्री डील विद चाइना डज नॉट वायलेट द 1950 डील इंडिया नेपाल ट्रीटी जो ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इट डज फील किया ना अनकन्वेंशनल एंड अलार्मिंग एज चाइना's definition ऑफ टेररिज्म कवर्स टिबेटियन एजिटेटर्स. ओके, देखिए चाइना की आप बात कर रहे हैं ना, 1950 में जो इंडिया नेपाल का जो ट्रीटी हुआ है पीस एंड फ्रेंडशिप के बारे में, ये क्या करेंगे, ये अलार्मिंग हो क्या कर रहा है कि ना चाइना भी टेररिज्म के स्टॉप खत्म करने के लिए, क्योंकि टिबेटियन में वो बहुत ही जो टेरर है वहाँ पर रहते हैं, तो वो उसको स्टॉप करने के लिए इंडिया चाइना एंड नेपाल भी जो मिलिट्री एक्सरसाइज वो काम करेंगे उसके बारे में. ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, यूएस स्लैप्स मोर सैंक्शंस ऑन रशियन बिजनेसेस. ओके, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का जो टारगेट क्या है, मोर रशियन बिजनेसमैन. ओके, एंड कंपनीज ओवर रशिया में जो काम कर रहे हैं, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया में अंदर जो एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूक्रेन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया का, तो वहाँ पर क्या करेंगे, स्लैपिंग देम विद यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शन इन ए मूव मॉस्को क्रिटिसाइज्ड एज हॉस्टाइल. ओके, जहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है क्योंकि वो उसका अंदर क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका टेरिटरी भी नहीं है. तो द यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस क्या कर रहे हैं ऑफ रशिया आफ्टर इट्स एनेक्स्ड द क्रीमिया Peninsula from Ukraine in 2014 and later expand sanctions over its support for separatist rebels. Okay, जिसको सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि 2014 से रशिया काम कर रहा है वहाँ पर, लेकिन उसको नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि जो यूक्रेन में जो पेनिनसुला क्रीमिया पेनिनसुला जो फ्रॉम यूक्रेन से. ओके, The measures come a month before United States President Barack Obama जो पहले मंथ में जो विजिट किया था वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर भी बात किया है, Obama's hand over power to President-elect Donald Trump, who has praised Russian President Vladimir Putin and said it would be good if the two countries could get along. अगर दोनों कंट्री अगर समझ कर लिया तो वो बहुत अच्छी होगा, नहीं तो वो उसका खतरा बढ़ेगा उसको. ओके, मिस्टर ट्रम्प जो नया प्रेसिडेंट है वो भी यही बात किया है. ओके, जो मिस्टर ट्रम्प नॉमिनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी. ओके, तो एक्सन मोबिल क्रॉप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेक्स टिलरसन हैज अपोज्ड किया है यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन ऑन रशिया व्हिच अवार्ड फॉर हिम ए फ्रेंड मेडल इन 2013. जो उसको आपको फ्रेंड का होना चाहिए, तो आपको डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए ये आर्टिकल में यही कहा है. ठीक है, क्रीमिया के अंदर जो हो रहा है ये बहुत अच्छी नहीं है, जो ब्लैक सी के पास है. ओके, नेक्स्ट देखिए. ओके, नेक्स्ट देखिए. ओके, banks asked to lower changes on digital transaction above which is 1000. देखिए बैंक्स ने क्या बताया ना, जो lower changes on digital transaction above which is 1000 in order to further incentives electronic जो transaction होगा, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया that is directed all public sector banks में होना चाहिए to lower the fees they charged for various norms of digital transactions. Okay, on March 31, 2017. Okay, so मार्च 31 के अंदर डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है उसको बहुत अच्छे से करना होगा. ओके, जो इन ऑर्डर टू फर्दर प्रमोट डिजिटल एंड कार्ड पेमेंट्स. देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड दे हैज इशूड a direction of public interest to all public sector banks को उसको उन्होंने डायरेक्शन दिया है एंड उसको बढ़ावा दिया है एंड in accordance with which these banks shall not charge fees for transaction settled on immediate payment service. Okay, जो बैंक जो फीस है
उसको ट्रांजेक्शन सेटल्ड है, ट्रांजेक्शन है, इम्पोर्टेंट पेमेंट सर्विस है, एंड यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इंटरफेस इन एक्सेस ऑफ रेट्स चेंज इन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखिए देखिए बैंक्स को भी उन्होंने बात नेशनल देखिए फाइनेंस सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उन्होंने भी बैंक्स को यही बात किया कि आप ट्रांजेक्शन करिए अब एबव 1000 का, एंड विद सर्विस टैक्स बीइंग चार्ज एट एक्चुअल्स, जो सर्विस टैक्स भी हमें उसके अंदर आपको लेना होगा। ओके, द गवर्नमेंट सेड इन इट्स स्टेटमेंट, ओके, for unstructured supplementary service data, okay, USSD transaction above which is 1000 further discount of 50 पैसे। देखिए उसके अंदर हमने 55 पैसा का जो उसको डिस्काउंट भी देंगे। ओके, ऑन दिस रेट सेल अप्लाई। ओके, द स्टेटमेंट एडेड किया है ना NEFT, ओके, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है उसको हमने ट्रांसफर अप टू 10,000 अट्रैक्ट ए फी ऑफ विच इज 2.5% ट्रांजेक्शन। ओके, अगर आप 10,000 आपका अगर आप ट्रांजेक्शन किया है और ट्रांसफ़र किया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र किया है तो आपको 2.5% जो है उसको आपको फी मिलेगा। ओके, transaction between 10,000 and less than which is 1 lakh। ओके, तो 10,000 एंड लेस देन जो 1 लाख है उसके ऊपर आपको 5 रुपया देना पड़ेगा देंगे। ओके, पर ट्रांजेक्शन में दोज बिटवीन विच इज 1 लाख एंड 2 लाख आपको पर 15 रुपया, एंड फी फॉर द ट्रांजेक्शन अबव 2 लाख तो 25 रुपया आपको देंगे। ओके, तो सर्विस टैक्स इज चार्ज ऑन top of this। Okay, so this follows the RBI's notification। ओके, लास्ट फ्राइडे ने वो दिया है RBI ने, तो इन हुई इंस्ट्रक्टेड बैंक्स टू रिमूव ऑल चार्जेस को उन्होंने रिमूव कर देंगे। ओके, ऑल कस्टमर्स फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 1000 सेटल्ड ऑन IMPS USSD ऑन और UPI सिस्टम के अंदर उसको लागू करना है, तो बिटवीन 1 जनवरी 2017 के अंदर। ओके, एंड 31 मार्च 2017 के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पर एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिटेल पेमेंट्स कहाँ पर हम कर सकते हैं? पंजाब नेशनल बैंक में, ICC में, ICICI बैंक में, ICICI बैंक में, HSBC में, HDFC में, सिटी बैंक, कनाडा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में, यूनियन बैंक में अंदर। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स NPCI किया, यहाँ पर क्या ना इलेक्ट्रिफिकेशन आपके करना पड़ेगा, एंड इंटरऑपरेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कस्टमर फ्रेंडली का होना चाहिए आपको, सेफ सिक्योर अवेलेबल एनीवेयर एनी टाइम, जहाँ आप कोई भी जाएंगे आप उसको अवेलेबल हो गया आप दे सकते हैं। ओके, तो फुल्ली ऑटोमेटेड वर्ल्ड क्लास है। ओके, उसके बाद देखिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स है। ओके, ये रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफ इंडिया में। ओके, थ्रू मोबाइल पे फ़ोन से हम ये कर सकते हैं। ओके, जो 2010 में लॉन्च हुआ है 2010 में। ओके, इट इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सटेंडेड थ्रू अदर चैनल्स। देखिए लाइक ATM में हम आज जैसे हम ATM से हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, इंटरनेट बैंकिंग के अंदर। ओके, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, MMID एंड इज a 7-digit number of which the first 4 digits are the unique identification number of the bank of offering IMPS। ओके, देखिए 7 नंबर जो हम लोगों को देंगे तो उसके जो फर्स्ट 4 है वो बहुत अच्छी है, उसको आपको याद रखना चाहिए, तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका। ओके, तो ID है, तो अनलाइक नीड NEFT एंड RTGS the service is available 24/7। तो आप एक हफ्ता में आप 24 आवर्स कभी भी आप एक कर सकते हैं। ओके, तो थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज में भी। इट इज़ मैनेज बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, कौन मैनेज किया है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एंड इज बिल्ड अपॉन द एक्सिस्टिंग नेशनल फाइनेंशियल स्विच सिस्टम नेटवर्क। ओके, देखिए ये आप कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या बताया गया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है इंडिया के अंदर। नवंबर 2005 में स्टार्ट हुआ था एंड इट इज़ वन ऑफ द फंड ट्रांसफर डन बाई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मैनेज मैसेजेस। दिस इज द नॉट ऑन रियल टाइम बेसिस लाइक RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दिस इज a net transfer facility which is executed in hourly batches resulting in a time lag। Okay, देखिए रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम, देखिए रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम क्या है, दीज आर स्पेशलिस्ट फंड ट्रांसफर सिस्टम है वेयर द ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेसेस फ्रॉम one banks to another, one bank to another on a real time and on the gross basis। Okay, settlements on real time means payment transactions is not subjected to any waiting period। Okay, which with transactions being settled as soon as they are proceed। देखिए gross settlement क्या है, gross settlement means transaction is settled on one to one basis में होगा। ओके, विदाउट बाइंडिंग और नेटिंग with any other transaction। Okay, settlements क्या means क्या है, settlement means that once proceed payments are final and irrevocable। Okay, देखिए RTGS systems क्या है, RTGS systems है जो है RTGS systems are typically used for high value transaction systems। Okay, that required क्या है, that required and received immediate clearing। Okay, and RTGS systems okay usually operated by a country's central bank and it is seen as a critical infrastructure for a country's economy। Okay, देखिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है ना, इट इज द सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक्स अकाउंट्स है आपका इनटू द सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में। ओके, ऑफ एनी पार्टिसिपेशन बैंक। ओके, मार्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स, आप जहाँ पर सेवरल बैंकिंग फीचर्स देख सकते हैं, सीमलेस फंड रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट्स इज इनटू वन हुड। इट ऑल्सो caters to the peer-to-peer collect request which can be scheduled and paid as per requirement and convenience। The pilot launch was on 11th April 2016। Dr. Raghuram G. Rajan, okay, the then Governor RBI, okay, banks have started to upload their UPI enabled apps and on Google Play Store में। okay, देखिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड यूपीआई, देखिए फर्स्ट क्या है, स्टार्ट ट्रांसफरिंग यूजिंग यूपीआई एंड उसके बाद सॉरी फर्स्ट क्या ना डाउनलोड यूपीआई ऐप। आप यूपीआई ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, उसके बाद इंस्टॉल करिए आपके फ़ोन में, तो उसके बाद सेटअप लॉगिन में जाइए, उसके बाद स्टार्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम यूजिंग यूपीआई, उसके बाद सेट ऐप लॉगिन, उसके बाद क्रिएट वर्चुअल एड्रेस, उसके बाद ऐड योर बैंक एड्रेस, सेट एम पिन, स्टार्ट यूज ट्रांजेक्शन यूपीआई। ओके, एडवांटेज क्या है, नॉट रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड्स, सेंड मनी यूजिंग वर्चुअल आईडी, नो नीड टू रिमेंबर और शेयर अकाउंट डिटेल्स, ऐड मल्टीपल बैंक्स अकाउंट इन द सेम एप्लीकेशन। So app allows users to transact at as low as 50 to as high 1 लाख, 1 लाख तक भी आप जमा कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यूएसएसडी क्या है, देखिए और एक पेज है, देखिए यूएसएसडी क्या है ना, अनस्ट्रक्चर्ड supplementary service data। Okay, it is global system for mobile communication technology that is used to send text between a mobile phone and an application program in the network। Okay, application may include prepaid roaming or mobile chatting। Okay, USSD systems is initiated by mobile user। USSD means displays on mobile handset। Okay, channel mobile USSD gateway। Okay, so third party web based application। Okay, मोबाइल सर्विस के देखिए मोबाइल नेटवर्क यूएसएसडी गेटवे एंड जो इंफॉर्मेशन इक्विलिटी कॉल बैक सर्विस, इंटरेक्टिव चैट, बैंकिंग सर्विस, टेलीपोर्टिंग, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ दिया हुआ है तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी के साथ लिया है। देखिए इसके बाद है एक है तो अब डिस्कस कर लेता हूँ। तो रोबोट प्रोवाइड्स रियर ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड अंडर अंटार्कटिक आइस सी आइस। ओके, देखिए एंड अंडर वाटर रोबोट जो है कैप्चर्ड है रियर ग्लिम्पेस बीनीथ द अंटार्कटिक सी आइस में, रिवेलिंग ए कलरफुल वर्ल्ड
filled with coconut soft sponges, dandelion like worms, pink algae and spidery starfish. देखिए वो रोबोट जो है वो प्रोवाइड रेयर ग्लिम्पस वर्ल्ड अंडर। देखिए अंटार्कटिक की जो सी है, जो आइस उसके अंदर जो आइस है वो उसके भी अंदर जो एक रोबोट को जो हमने वहाँ पर है जो कैप्चर कर रहा है वहाँ का जो डिफरेंट जो कोकोनट शेप्ड स्पॉन्जर्स है, देखिए डेंडिलियन है लाइक वर्म्स, पिंक एल्गी है, वो उसको देख रहा है। ओके, तो वो सरफेस में वो दे रहा है उसका डेटा क्या है वो। तो वो बहुत अच्छी काम किया है जो द ऑस्ट्रेलियन जो अंटार्कटिक डिवीजन जो टू फुटेज ऑन ए कैमरा में वो आया है अंटार्कटिक ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में आया है कैमरा अटैच टू ए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ओके, जो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, ओके, सेंट डाउन बाय साइंटिस्ट थ्रू ए स्मॉल होल ड्रिल्ड इन द आइस एज दे रिकॉर्डेड द एसिडिटी ऑक्सीजन। वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर, उस पानी का ऑक्सीजन कितना है उस पानी के अंदर, एसिडिटी क्या है, सैलिनिटी क्या है एंड टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर। ओके, when you think the end of the Antarctic coastal marine environment, the iconic species such as penguins, देखिए आप penguins भी देख सकते हैं वहाँ पर, seals, seal march, sealfish, okay, and whereas usually still the so, okay, the footage reveals a habitat that is productive, colorful, dynamic and full of a wide variety of biodiversity। देखिए वहाँ पर बहुत सारी biodiversity आप देख सकते हैं। ओके, कलरफुल बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हैं, डायनामिक है वो, तो इंक्लूडिंग स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस देख सकते हैं आप, सी स्पाइडर्स देख सकते हैं, ठीक है, सी कोकुम्बर्स, ओके, सी स्टार्स देख सकते हैं, ओके, यूक्रे आर्कियंस, ओके, दिस स्पीसीज रिकॉर्डेड नियर ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं कि किस रिसर्च स्टेशन में लाइव इन वाटर में आप देख सकते हैं। दैट इज -1.5 डिग्री सेल्सियस जो सेल्सियस टेम्परेचर है ईयर राउंड एंड कवर्ड इन 1.5 मीटर ऑफ सी आइस। ओके, जो जहाँ पर 1.5 मीटर जो सी आइस कवर्ड है वहाँ पर। ओके, तो फॉर 10 मंथ्स इन ऑफ द ईयर, आप 10 मंथ से देख सकते हैं एक ईयर में। तो occasionally an iceberg may move around and wipe out an unlucky community, okay, but mostly the sea ice provides protection from the storms the rage above, making it a relatively stable environment it which biodiversity can flourish. Okay, so scientists in Antarctica are working on better understanding of the impact of acidification of southern ocean seafloor communities under increasing carbon dioxide emission। देखिए अंटार्कटिका में बहुत सारी हमने क्या दिखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड का जो एमिशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट ने वो देख रहा है कि क्या इससे कितना इम्पैक्ट फैल रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो वो देख रहे हैं इसका साथ। ओके, इसका लॉन्च किया है इसीलिए। तो रोबोट प्रोवाइड्स द रियर ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड अंडर अंटार्कटिका सी में, वो इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया है। ओके, तो a quarter of the carbon dioxide जो emitted into the atmosphere was absorbed by the ocean। देखिए बहुत सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ओशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो which increases its acid, जो इस एसिडिटी को भी बढ़ा रहा है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल, जो कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में एंड पोलर वाटर्स में आर एसिडिफाइंग एट ट्वाइस द रेट ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। ओके, तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन से भी ज़्यादा वो एसिड हो रहा है जो अंटार्कटिका में सी के अंदर। ओके, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड है। These ecosystems are expected to be among the first impacted from ocean acidification। जो दिस इकोसिस्टम भी ऊपर डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए तो ओशन का जो एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो इसीलिए इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो आप देखिए, तो उसके बाद देखिए आप ओशन एसिडिफिकेशन क्या है। देखिए इट इज द ऑनगोइंग डिक्रीज ऑफ द pH of the Earth's oceans, okay, caused by the uptake of carbon dioxide from the atmosphere. Sea water is slightly
बेसिक। देखिए दैट मीन्स pH इज बिलो 7 एंड द प्रोसेस और इज क्वेश्चन इज शिफ्ट टुवर्ड्स pH neutral conditions rather than a transitions of to acidic condition. Okay, देखिए ocean acidity alkalinity is not changed okay by the process or may increases okay, ये हो सकता है increase हो सकता है okay alkalinity ठीक है ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड्स में ड्यू टू कार्बोनेट डिसोल्यूशन में ठीक है एंड एस्टिमेटेड 30 to 40% of the carbon dioxide from human activity released in the atmosphere dissolved in the ocean okay and rivers and lakes में अंदर okay देखिए 30 to 40% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं हम इंसान हम ह्यूमन ही हम इसको रिलीज करते हैं उसके बाद वो ओशन में और रिवर में लेक्स में आते हैं ओके तो बहुत सारा इम्पैक्ट फैलते हैं ओके तो इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर ओशन बायोलॉजी बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं तो इम्पैक्ट फैलते हैं बायोकेमिकल चेंज होते हैं ओशन का तो कुड अंडरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ मेरीन इकोसिस्टम भी वो चेंज होता है ओके मेरीन इकोसिस्टम में जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होता है डिस्टर्ब द प्रिवेंशन ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विस एसोसिएटेड विद द ओशन ओके तो देखिए यहाँ पर देखा ना कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो रहा है इंडियन द ओशन टू मेक कार्बोनिक एसिड हो रहा है तो उसके बाद देखिए द अमाउंट ऑफ एसिड हैज इंक्रीज हो रहा है ओवर द पास्ट 150 ईयर्स में दिस चेंजेस ऑफ द इन ओशन केमिस्ट्री सो कैन डिस्टर्ब इन द इंटर मेरीन फूड भी डिस्टर्ब हो रहा है ओके तो उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू फॉर द डिस्कशन सो थैंक यू।